Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the representative government. In that, अपन last point पढ़ रहे थे. I think that is the emancipation of women and women franchising. See, मिल ने क्या किया? मिल paid attention to the question of women's right in the 18th century. वो बोलता है कि बाबा मैन वुमेन में अपन जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सही बात है ना. अगर डिस्क्रिमिनेशन होता रहा तो वुमेन कभी आगे नहीं आएगी. हाँ, एंड ही वॉज द फर्स्ट टू रेज द इशू ऑफ वुमेन्स इमेंसिपेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और वो कहता है कि अगर वुमेन को भी आप अपॉर्चुनिटी दो अच्छे से तो वो भी बराबर से अच्छे से मेन के जैसे काम कर सकती है. इन द हाउस ऑफ कॉमन ही मेड एन अपील टू एक्सटेंड द राइट टू वोट टू द वुमेन. से पहले क्या थे, खाली मेन लोग वोट करते थे, वुमेन हैड नो राइट टू वोट. सो इन हाउस ऑफ कॉमन ही सेड कि भाई इवन वुमेन शुड हैव अ राइट टू वोट. मिल वॉज ऑफ द थॉट कि बाबा वुमेन्स आर नेचुरली इक्वल टू मेन, राइट. तो उनमें आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो? एडुकेशन, सर्कमस्टेंसेस में, हर चीज़ में आप डिफरेंस क्यों कर रहे हो? जब उनका नेचर सेम है तो फिर आप ऐसे भेदभाव मत करो. जितनी अपॉर्चुनिटी आप मेन को देते हो उतनी ही अपॉर्चुनिटी वुमेन को भी दो. सेकेंडली, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन में भी बढ़ना चाहिए. लाइक इवन वुमेन शुड गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट. ही एक्टिवली सपोर्टेड द वुमेन्स फ्रेंचाइजी मूवमेंट बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट. People's participation in administration and exercise of Soviet authority. Mill said every citizen should have a voice in the exercise of the utilitarian sovereignty, but he is occasionally called on to take an actual part of the government by the people's discharge of some public function. See, फिर मिल ने लीडरशिप के बारे में क्या बोला? He refused to give Soviet power to the representative assembly. He favored a small expert body, a commission of legislature to make law. He had no regard for armature political executive. See, Mill was a true democratic who pointed out basic issues, right. मतलब वो लाइक अगर आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप ये यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बेसिक इश्यूज़ क्या रहेंगे, किस तरह से आप वो अच्छे से बिल्ड कर सकते हो. लाइक अ वे ऑफ बिल्डिंग अ डेमोक्रेसी, मेल फ्लेवर्ड इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेसी. He trusts democracy only in the hand of those who possessed intelligence, education and higher character. He thought that democracy, liberty was not suitable to all kinds of people, right. He gave importance to equality. He gave importance to quality than quantity of number of people in democratic system. He was a great feminist, great champion of individualism and liberty of an individual. Then his views on यूटेरिनिज्म. सी, यूटेरिज्म क्या है? जॉन मिल बिलीव्ड इन द फिलोसॉफी ऑफ यूटिलिज्म विच वुड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल दैट होल्ड्स द एक्शन दैट आर राइट इन प्रोपोर्शन एज टू द मतलब ये ऐसा एक्शन है जो आप अच्छे से करो ताकि क्या है आपको खुशी मिले, राइट, जिससे आपको दुख ना हो. बाय हैप्पीनेस ही मेंट इंडेड प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ पेन. सी, जब वो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है? It is indeed pleasure and the absence of pain. By unhappiness, pain and the privatization of pleasure. It is clear that we do not all value virtues as a part to happiness and that we sometimes only value time for selfish reason. However, Mill asserted that upon reflection, even when we value virtues for selfish reasons, we are in fact cherishing them as a part of our happiness. Bennetham's famous formulation of utilitarianism is known as the greatest happiness principle. He holds that one must always act so as to produce the greater aggregate happiness. See, happiness क्या है? ये understood as a production of pain or privatization of pain. Given that determining the action that produces the most utility is not always so clear cut, Mill suggested that the utilitarian moral agent, when attempting to rank the utility of different action, should refer to general experience of person. That is, if person generally experience more happiness following action X, then do action Y.
The uterine should conclude that action X produces more utility than action Y, so it is to be preferred. यहाँ तक अपन ने लास्ट सेक्शन में किया था. Now moving forward, यूटेरिनिज्म इज अ कॉन्सिक्वेंशनल इथिकल थेरी. सी, यूटेरिनिज्म क्या है? ये एक इथिकल थेरी है. हाँ, कॉन्सिक्वेंस्ट इथिकल थेरी मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है एंड ऑल. मीनिंग दैट इट होल्ड्स दैट एक्ट्स आर जस्टिफाइड इन सो फार एज दे प्रोड्यूस अ डिजायरेबल आउटकम. सी, मीनिंग क्या है? व्हाट्स दैट मीनिंग? इट इज एन एक्ट दैट शुड बी जस्टिफाइड एंड दैट शुड गिव अ प्रॉपर आउटकम. लाइक उसका आउटकम कुछ तो अच्छा होना चाहिए. वॉट एवर एक्शन यू डू, इट्स आउटकम शुड बी समथिंग गुड, समथिंग डिजायरेबल. द overreaching goal of uterinism, the ideal consequences, is to achieve the greatest good for the greatest number as the end result of human action. See, the overreaching goal of uterinism, the ideal consequences, is to achieve. अभी आइडली अपने को क्या अचीव करना है? व्हाट आर वी सपोज टू अचीव? द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर as the end result of human action. Right? In uterinism, Mill stated that happiness is sole end of human action. See, what Mill stated is that happiness is the sole end of human action. Like आप जो भी करो आपको खुशी मिलेगी. लाइक आपने कुछ काम किया, आपको खुशी मिल गई, देन दैट्स द एंड ऑफ योर एक्शन. राइट? जैसे कि एग्जाम्पल, आपको शॉपिंग करने जाना रहता है. राइट? बहुत टाइम से आपको शॉपिंग करना है और जैसे ही मॉल ओपन हो जाते हैं, शॉप्स ओपन हो जाते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हो, आपकी मन चाहे शॉपिंग हो जाती है. राइट? और आप बहुत ज़्यादा खुश हो. तो क्या है, भले आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा सा पैसा था, बट उन पैसों में आपने बहुत अच्छे से शॉपिंग कर ली. तो क्या है, आपका शॉपिंग करना फ़ायदेमंद रहा ना. आपको जो खुशी जो मिलती है शॉपिंग करने का, जो खुशी मिलती है, दैट इज़ द end result of human action, and that is the happiness is the sole end of human action. This statement aroused some controversies, which is why Mill took it a step further, explaining how the very nature of human wanting happiness and who takes it to the reason under free consideration demand that happiness is indeed desirable. See, बट जब मील के स्टेटमेंट बोलता है हैप्पीनेस इज़ द सोल एंड ऑफ ह्यूमन एक्शन, तो क्या है, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज बोली. दैट इज़ वाई मील क्या बोल रहा है, मील ने एक स्टेप आगे ले लिया. वो बोलता है कि बाबा ह्यूमन नेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहिए रहती है. राइट? बहुत ज़्यादा रीजंस देता है, अगर मुझे ऐसा हुआ तो ही मैं खुश रहूँगा. और डिमांड्स क्या है, अनडिज़ायरेबल है. लाइक वी सॉ इन इकोनॉमिक्स, पहले अपन ने 11th-12th इकोनॉमिक्स में देखा, अगर अपनी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा आ जाती है. लाइक वी हैव एन एंडलेस डिमांड, एंडलेस डिज़ायर. राइट? आज आप बोलोगे मुझे नई बाइक चाहिए, नई बाइक दे दी, एक तो थोड़े दिन के बाद आप बोलोगे अरे बाइक के लिए मेरे को नया सीट कवर चाहिए, बाइक के लिए पेट्रोल ज़्यादा लगता है तो आई नीड मोर पेट्रोल अलाउंसेस. राइट? यानी मेरा पॉकेट मनी बढ़ा के दो. फिर तब तक ये सब हो जाते, ठंडी आ जाएगी, अरे ठंडी आ गई है, मुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना रहता है, रात को जॉब पे जाता हूँ तो लेट आता हूँ, तो मुझे जैकेट चाहिए. राइट? जैकेट मिल गया तो वो लोग फिर कान टोपी चाहिए. ये क्या है, वी हैव एन एंडलेस डिमांड, एंडलेस डिज़ायर. इन अदर वर्ड्स, free will lead everyone to take action inclined on their own happiness, unless reason that it would improve the happiness of other, in which case the greatest utility is still being achieved. See, in other words क्या है, free will lead everyone to make actions inclined on their own happiness. मतलब आपको जो खुशी मिलती है आप वो करो, बाकी सब छोड़ दो. यहाँ पे द ग्रेटेस्ट यूटिलिटी इज स्टिल बीइंग अचीव्ड. इन अभी कौन से इसमें आप ज़्यादा यूटिलिटी आपकी अचीव होती है? टू दैट एक्सटेंट द यूटिलिज्म दैट मिल इज डिस्क्राइबिंग इज अ faulty lifestyle that he believed is what people who have not studied a specific opposing field of ethics would naturally and subconsciously use when faced with decision. See, to that extent क्या है,
द यूटेरियनिज्म दैट मील इज डिस्क्राइबिंग। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो यूटेरियनिज्म जो मील डिस्क्राइब कर रहा है ये क्या है, इट डील्स विद द फॉल्टी लाइफ स्टाइल दैट ही बिलीव्स इन व्हाट पीपल who have not studied a specific field of ethics would naturally and subconsciously use when faced with certain decisions. Then utilitarianism is a thought of by some of its activity to be a more developed and overreaching ethical theory of Immanuel Kant belief in goodwill and not just some default cognitive process of human. See, utilitarianism is thought of, ये एक थॉट है जिससे क्या है, सम ऑफ इट्स एक्टिविटी टू बी अ मोर डेवलप्ड एंड ओवररीचिंग इथिकल थ्योरी ऑफ इमैनुअल कांट बिलीव इन गुडविल एंड नॉट जस्ट सम डिफॉल्ट कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, वेयर कांट वुड आर्ग्यू दैट रीजन कैन ओनली बी यूज्ड प्रॉपरली बाय गुडविल. मिल वुड से दैट द ओनली वे टू यूनिवर्सली create fair laws and system would be kept step back to the consequences, where Kant's ethical theories become based around the ultimate good utility. See, अब ये क्या है, यूटिलिज्म क्या है, ये आपकी एक्टिविटी है, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो आपको डेवलप करनी है, राइट. और एज पर द इमैनुअल कांत वो बिलीव क्या करता है, बिलीव इन गुडविल, ये गुडविल में बिलीव करता है एंड नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या एक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर बिलीव नहीं करता है. और वेयर कांट वुड आर्ग्यू दैट रीजन कैन ओनली बी यूज प्रॉपरली बाई गुडविल. सी, और कांत आर्ग्यू क्या करता है, जो भी रीजन, वॉट एवर द रीजन वुड बी, इट कैन बी यूज प्रॉपरली बाई गुडविल इटसेल्फ. Mill would say that the only way to universal create fair laws and system would be to set back to the consequences. See, Mill would say that the only way to universal is क्या है, so that you create a fair law and एक system that would set back to the consequences, whereby Kant's ethical theories become based around the ultimate goodwill, good utility. See, whereby Kant's ethical theories, जबकि ये कांत की ethical theory it becomes the around the goodwill, ultimate good utility. By this logic, the only valid way to discern what proper reason is would be to view the consequences of any action and weigh the good and the bad, even if on the surface the ethical reasoning seems to indicate a different train of thought. By this logic, the only valid way, see, उस लॉजिक से देखा गया तो एक वैलिड वे है जहाँ पे आप प्रॉपर रीज़न करोगे. इस ये क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन है जहाँ पे आप अच्छा बुरा आपको समझता है, और फिर कोई भी ग्राउंड रहने दो, आपको अच्छा बुरा समझना है विथ प्रॉपर रीजनिंग, और उस हिसाब से आपके थॉट सारे डेवलप करने हैं यहाँ पे. देन हायर एंड लोअर प्लेजर. Mill's major contribution to utilitarianism is his argument for the qualitative suppression of pleasure. See, Mill's का major contribution to utilitarianism is his argument for the qualitative suppression of pleasure. Bentham treats all form of happiness as equal, whereas Mill argue that intellectual and more pleasure are superior to more physical form of pleasure. See, Bentham treat all form of pleasure as equal. Bentham क्या बोल रहा है, हम खुशियाँ हर काम से एक जैसी मिलेगी, बट मील क्या बोलता है, मील आर्ग्यू करता है, राइट. जॉन मिल इज आर्ग्यूइंग दैट मोर प्लेजर आर सुपीरियर टू मोर फिजिकल फॉर्म ऑफ प्लेजर. सी, कुछ कुछ प्लेजर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ प्लेजर कम होते हैं, राइट. कोई कोई अभी एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू गो टू सम होटल, राइट, बट सम एक्सपेक्टेशंस, राइट. आपको एक खुशी मिलती है कि यार मैंने बहुत दिनों के बाहर का खाना खाया और अच्छा खाना खाया, अच्छा था खाना. वही अगर बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना हो तो क्या है, खुशी क्या है, बहुत ज़्यादा रहती है, राइट. इफ़ यू, अगर आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि यार ये ABC होटल में बहुत अच्छा खाना मिलता है और ये चीज़ अच्छी मिलती है, स्पेसिफिक चीज़ों के नाम भी बोल दिया उसने, बट उस दिन क्या होगा, उस दिन वो स्पेसिफिक चीज़ अच्छी नहीं बनी होगी, राइट. तो आप क्या बोलोगे, अरे यार अच्छा नहीं था. हाँ, एम्बियंस वॉज गुड, होटल अच्छा था, ये चीज़ अच्छी थी, बट ये चीज़ बहुत बुरी थी.
तो क्या है, और तो क्या है, खुशी थोड़ी कम है। अगर जो जो उसने बोला वो सारी चीज़ें आपको पसंद आ जाती है तो क्या है, आपकी खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो मिल क्या बोलता है, प्लेजर एक जैसा नहीं रहता, किसी को ज़्यादा खुशी, कुछ चीज़ों की ज़्यादा खुशी रहती है, कुछ चीज़ों की कम खुशी रहती है। He distinguishes between happiness and contentment, claiming that the former is of higher value than the latter, a belief widely encapsulated in the state that it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. See, अभी ये क्या है, ये अभी वो डिस्टिंग्विश भी करता है खुशी और कंटामिनेट के बारे में, और वो बोलता है क्लेमिंग दैट हायर वैल्यू, मतलब ज़्यादा वेटेज दोगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, और वो एक स्टेटमेंट बनाता है, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, राइट। अभी पिग क्या है, दिन भर खाते रहता है और सारा कचरा ही खाता है। तो आप ह्यूमन बीइंग हो, आप डिससेटिस्फाइड रहोगे चलेगा, बट कुछ भी खाओगे, कुछ भी कचरा करो, दिन भर कचरा खाओगे तो गंदी बात है। सो इसलिए वो ह्यूमन बीइंग को पिग के साथ कंपेयर कर रहा है। बट पिग कचरा खा के भी सेटिस्फाइड रहता है ना, आप कचरा खा के सेटिस्फाइड रहोगे क्या, नहीं। सो इट इज सेइंग इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी स्कॉटेड डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। से better to be spotted dissatisfied, and if the fool or the pig is of the different opinion, it is because they only know the o side of a question। से अभी एक पागल आदमी और एक पिग, दोनों के ओपिनियन में बराबर डिफरेंस आएगा ही श्योर। क्यों, बिकॉज इनको सिर्फ एक साइड का क्वेश्चन रहता है। देन दिस मेड मील बिलीव दैट our only ultimate end is happiness। इसलिए what meal is believing is कि our ultimate aim is happiness। One unique part of his utilitarian view is that is not seen in others in the idea of higher and lower pleasure। See, one unique part of his utilitarian view is that it is not seen in others is the idea of higher and lower pleasure। Mean explains the difference pleasure as मील एक्सप्लेन्स डिफरेंट प्लेजर। अब प्लेजर में भी मील अलग अलग बोल रहे हैं, लाइक प्लेजर के नाम पे वो एक ही नहीं बोल रहे हैं, इज एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग ओवर दैट। इफ आई आस्क व्हाट आई मीन बाय डिफरेंस ऑफ क्वालिटी इन प्लेजर और व्हाट मेक्स वन प्लेजर मोर वैल्यूएबल देन अदर, merely as a pleasure expect is being greater in amount, there is but one possible answer। See, अगर मैं आपको सवाल करूँ what is mean by difference of quality in pleasure, अब प्लेजर अलग अलग रहता है, ये मैं आपको सवाल पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे, या फिर आपको ज़्यादा खुशी किससे, ज़्यादा प्लेजर कब मिलता है, हाँ, या फिर प्लेजर क्या है। तो एक्सपेक्ट इट्स बीइंग ग्रेटर इन अमाउंट, देयर इज बट वन पॉसिबल आंसर। उन सब का एक पॉसिबल आंसर रह सकता है, हाँ, कि बाबा मेरे लिए प्लेजर XYZ है, मेरे लिए प्लेजर OMNP है। ऑफ टू प्लेजर इफ देयर बी वन टू विच ऑल और ऑलमोस्ट ऑल हु हैव एक्सपीरियंस टू बोथ गिव अ डिसाइड प्रेफरेंस दैट इज द मोर डिजायरेबल प्लेजर। ऑफ टू प्लेजर सी, अगर दो प्लेजर, दो खुशियाँ मिल रही है, हाँ, और आपको दोनों में से एक ही चूज़ करना है तो आप क्या करोगे, जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी आप बट ऑब्वियसली वही करोगे ना। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ जैसे इफ़ आई टेल यू कि बाबा लेट्स गो टू हैव सम आइसक्रीम एंड ऑल, आइसक्रीम खाएंगे। अभी आपको मैं बोलूँ कि बाबा आई एम गोइंग टू ईट दिस न्यू फ्लेवर, एंड इफ़ यू से कि बाबा नो आई डोंट वांट टू ट्राई न्यू फ्लेवर, आई वांट टू ईट दिस फ्लेवर ओनली, आई डोंट वांट टू ट्राई, मैं एक पर्टिकुलर फ्लेवर खाता हूँ, मैं वही खाऊंगा, आई एम गोइंग टू हैव दैट ओनली फ्लेवर। तो क्या है, आपका प्लेजर नया ट्राई करने में था क्या, नहीं, आपका प्लेजर जो आप हमेशा खाते हो वही करने में था ना। अगर वही आप नया ट्राई कर लेते तो आपके मन में किधर ना किधर तो डिससेटिस्फैक्शन रहता, और यार इस बार मैंने वो हमेशा वाला नहीं खाया, नया खाया मैंने, अच्छा था, बट मेरा हमेशा वाला फ्लेवर बहुत अच्छा था, इसमें वो खाते हुए मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो क्या है, यहाँ पे प्लेजर आपके लिए अलग है, तो दोनों में से एक प्रेफर चूज़ करो बोला तो
जिसमें ज़्यादा खुशी होगी, बट ऑब्वियसली आप वही चूज़ करोगे. He defines higher pleasure as mental, moral, and aesthetic pleasure, or lower pleasure as being more sensational. See, he defines higher pleasure as mental, moral, and aesthetic pleasure. See, he defines higher pleasure as अभी ये जो हायर प्लेजर है वो कैसे डिफाइन कर रहा है? हायर प्लेजर एज मेंटल, मॉरल एंड एस्थेटिक प्लेजर. बहुत ज़्यादा खुशी क्या है? दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. और कम खुशी क्या है? ये थोड़ी सेंसेशनल रहती है. अरे तूने ये खाया, तेरा तो अच्छा ही नहीं था आइसक्रीम, तूने नया फ्लेवर था बट तेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो कितना दुख होता है. इट इज़ नथिंग बट अ बीइंग मोर सेंसेशनल. He believed that higher pleasure should be seen as preferable to lower pleasure since they have a higher quality in virtues. See, he believed that higher pleasure should be seen as preferable. See, higher pleasure को ही अपन ज़्यादा preferable देते हैं than to lower pleasure. बराबर है ना? जिस काम में आपको ज़्यादा खुशी मिलती है आप उसी को इम्पोर्टेंस देते हो, जिसमें आपको कम खुशी मिलती है आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो क्या? नहीं. सिंस दे हैव अ ग्रेटर क्वालिटी इन वर्च्यूज. क्यों? क्योंकि अलग अलग वर्च्यूज रहते हैं. ही होल्ड्स दैट प्लेजर्स गेन्ड इन एक्टिविटी आर ऑफ हायर क्वालिटी देन दोज गेन पैसिवली. सी, ही होल्ड्स दैट प्लेजर गेन्स इन एक्टिविटी. सी, जो आप एक्टिविटी करते हो, जो आप दिल से काम करते हो, उसके अंदर आपको ज़्यादा खुशी मिलती है देन द गेन पैसिवली. मिल डिफाइंस द difference between higher and lower form of pleasure with the principle that those who have experienced both tend to prefer one over the other. See, Mill defines the difference between the higher and lower pleasure. Mill difference बोलता है higher and lower pleasure में क्या फ़र्क है, वो बोलता है with the principle that those who have experienced both trend. कौन सा प्रिंसिपल? जिन्होंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, हायर और लोअर प्लेजर, जिन्होंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, दे ट्रेंड टू प्रेफर वन ओवर द अदर. दिस इज परहैप्स इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट विद बेनेथिम स्टेटमेंट. सी, दिस इज क्या है? ये क्या है? ये डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है विद बेनेथिम स्टेटमेंट दैट क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल पुशपिन इज एज गुड एज पोएट्री. सी, क्वांटिटी ऑफ प्लेजर क्या है? बीइंग इक्वल. प्लेजर क्या है? इक्वल ही रहेगा बट अपने डिपेंड रहता है. दैट इफ अ सिंपल चाइल्ड्स गेम लाइक हॉपस्कॉच कॉजेज मोर प्लेजर टू मोर पीपल देन अ नाइट एट द ओपेरा हाउस, इट इज मोर इनक्यूबलेंट अपॉन अ सोसाइटी टू डिवोट मोर सोर्स टू प्रोपोगेटिंग हॉपस्कॉच देन रनिंग ओपेरा हाउस. सी, यहाँ पे देखो, अगर बच्चों को हॉपस्कॉच खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है. हॉपस्कॉच यानी क्या? हाथ इधर, वो मैट भी आती है आजकल वैसी हॉपस्कॉच की, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये ओपेरा हाउस क्या है? जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए इंडोर गेम्स वगैरह रहता है, राइट. तो क्या है दैट अगर सिंपल गेम लाइक हॉपस्कॉच से क्या है आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, तो फिर ये ओपेरा हाउस का कुछ काम है क्या? नहीं. तो सोसाइटी ने क्या करना चाहिए? हॉपस्कॉच खेलने के लिए बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, उस हिसाब से उनको स्पेस वगैरह दे देनी चाहिए so that they can run the so that they can play the game in a proper way. Mill's argument is that the simple pleasure turned to be preferred by people who have no experience with high art and are therefore not in a proper position to judge. See, मिल क्या करता है? आर्ग्यू दैट कि जो सिंपल प्रेशर है वो इट इज़ प्रेफर्ड बाय द पीपल जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता हाई आर्ट का वगैरह जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता, व्हाट दे टर्न टू हैव लेस प्लेजर. ही ऑल्सो आर्ग्यू दैट पीपल हु फॉर एग्जाम्पल आर नोबल और प्रैक्टिकली फिलोसॉफी benefit society more than those who engage in individualist practices for pleasure, which are lower form of happiness. See, he also argues that people who, for example, are noble or practice philosophy.
से जो लोग नोबल रहते हैं, जो फिलोसॉफी प्रैक्टिस करते हैं, बेनिफिट सोसाइटी मोर देन, वो सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं जो कि जो अकेला इंडिविजुअल काम करता है। अगर अपन सब लोग मिलके काम करेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, और अगर आप अकेले ही काम करोगे तो आपको इतनी खुशी मिलेगी क्या? बट ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। विच आर लोअर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस. It is not the agent's own greatest happiness that matters, but the greatest amount of happiness altogether. See, benefit society more than those who engage in. See, it is not the agent or greatest happiness that matters. See, एक एजेंट नहीं है जो आपको ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस देता है, बट क्या है, ये एक अमाउंट है ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ हैप्पीनेस ऑल टुगेदर, बट इट इज़ द greatest amount of happiness together. And then chapters, we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll be studying about the chapters. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail id. My mail id is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.